بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ رات کی گہرائیاں اپنے جوبن پر تھی۔ لمبے ریشمی اور ملائم بالوں کے حصار میں وہ چہرے پر دنیا کی معصومیت سمیٹے بے خبر سو رہی تھی۔ لکشمی جی، لکشمی جی، اس کے کان میں سرگوشی ہوئی۔ ایک نامانوس آواز میں جیسے شیرنی کھلی ہوئی تھی۔ اتنے مدھر انداز میں شاید اسے پہلی بار کسی نے پکارا تھا۔ ہاں، وہ بے اختیار اٹھ کر دائیں بائیں دیکھتی پکارنے والے کو تلاش کر رہی تھی۔ تلاش لا حاصل رہی اور ایک انجانی کسک نے دل میں گھر کر لیا۔ رات کا وقت تھا، 400 چاند کی چاندنی کا راج تھا۔ انسانی آبادی نیند میں ڈوب کر اپنے خوابوں کے آغوش میں تھی۔ اس سمے 4 غیر انسانی وجود خلاؤں میں محو سفر تھے۔ یہی ان کی بیداری کا وقت تھا۔ مجھے یہاں کچھ وقت کے لیے ٹھہرنا ہے۔ عبدل کی اس غیر معمولی بات پر تینوں ہنس پڑے تھے۔ تم شاید اپنی والدہ کی ہدایت بھول گئے ہو۔ ایک پل بھی رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک نے یاد دہانی کروانا ضروری سمجھا۔ مگر میں اس خوشبو کی کھوج لگانا چاہتا ہوں جو اس وقت واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ نہیں، کوئی خوشبو نہیں ہے۔ تم تو جانتے ہو ہم پر کوئی خوشبو اثر انداز نہیں ہو سکتی سوائے عشق کی خوشبو کے۔ تو کیا یہ عشق کی خوشبو ہے جو میرے ہوش اڑا رہی ہے؟ عبدل یہ سوچ کر رہ گیا۔ وہ مزید تیزی سے اپنی منزل کی اور بڑھنے لگے۔ یہ لکشمی کی ماں تارا ہے، جس کا دل اس دن امید سے پر ہے۔ خواب خواہش کا روپ دھار کر اس کے چہرے پر ایک الگ ہی رنگ نچھاور کر رہا تھا۔ بیٹی کے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ 5 گھروں کے برتن مانجتی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھوں پر ڈالی جن کی لکیریں مٹنے کے قریب تھیں۔ بھگوان، ان ہاتھوں کی محنت کو ضائع نہ کیا جائے۔ اس بار لکشمی کے اتنے اچھے نمبر آئیں کہ اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو جائے۔ وہ من ہی من میں خود سے محو کلام تھے۔ کتنی اچھی لگے گی میری لکشمی ڈاکٹر کا کوٹ پہنے۔ ہر کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی، مجھ سے اور میری ماں سے کتنی مختلف دکھائی دے گی۔ بھگوان کی کرپا سے وہ ایک دن ضرور آئے گا۔ وہ اپنے من پسند خوابوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان دنوں اس کا یہی پسندیدہ مشغلہ تھا۔ صبح سے ہی لکشمی بڑی بے چین تھی۔ رات والا عجیب و غریب خواب اسی بے چینی کی نظر ہو گیا تھا۔ فکر تھی تو بس اپنے رزلٹ کی۔ ماں کی امیدوں سے وہ بخوبی واقف تھے۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے وہی ان کی امیدوں کا مرکز تھی۔ اس بات سے وہ بھی اچھی طرح واقف تھے۔ اسے ڈاکٹر کے روپ میں دیکھنا ان کی زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا جسے وہ پورا کرنا چاہتی تھی۔ مگر اپنے دل اور دماغ کا کیا کرتی جو کسی طور سائنسی تعلیم کے لیے آمادہ نہیں تھے؟ یوں یہ سفر مارے بندھے جاری تھا۔ رزلٹ کی سلپ دیکھ کر اس کی ٹانگوں سے جان ہی نہیں نکلی تھی۔ وہ سانس بھی تھم گئی تھی۔ وہ بے جان سے بسما کا ہاتھ تھامے بینچ پر آ کر بیٹھی۔ ضروری تھا کہ ایک بار پھر سے میرے ہاتھوں میرے ماتا پتا کی خواہشات کا خون ہوتا۔ کیا منہ دکھاؤں گی انہیں؟ صبر کرو پلیز، ہمت ہارنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جب انسان خود ہمت ہار جائے تو اس کے لیے اس کے موکل بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ بسما روانی سے بولتی چلی گئی تھی۔ لکشمی یکٹک اسے دیکھے گئی۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ موکل کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا یہ تمہارے مذہب میں کامیابی کا کوئی آلہ ہے یا کوئی دعا ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ۔ وہ التجائیہ انداز میں بولی، موکل جن غلام ہوتے ہیں جو اپنے مالک کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ مجھے ضرور ایک غلام جن کی ضرورت ہے۔ لکشمی نے دل ہی دل میں سوچا۔ رات کے سناٹے میں بہت ساری خاموشیاں محو رقص تھی۔ دہاڑ کی آواز سے کھڑکی کھلی تھی۔ لکشمی جی، لکشمی جی، پکار وہی تھی مگر اس آواز میں بے قراری کا عنصر بے حد عیاں تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھ رہی تھی مگر آواز دینے والا جیسے اڑان بھر گیا تھا۔ کھلی کھڑکی سے ہوا کے تازہ جھونکے اندر داخل ہو رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ باہر تا حد نگاہ اندھیرے کا راج تھا۔ یہ کھڑکی مسیحی مذہب برادری کے قبرستان میں کھلتی تھی۔ عام حالات میں وہ اس کھڑکی کو کھولنے سے ڈرتی تھی مگر آج اس پر کسی کو تلاش کرنے کا بھوت سوار تھا۔ اسی وقت کئی بلیوں کے رونے کی آواز فضا میں گونجنے لگی۔ اندھیرے میں ان کی چمکتی آنکھیں بھی اس کے خوف کو بیدار کرنے میں ناکام تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے مایوس انداز میں کھڑکی بند کر دی اور مسہری پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس نے گھڑی کی جانب نگاہ دوڑائی۔ رات کے 3 بجے تھے۔
उसी सानियों से कुछ याद आया तो उठकर खड़ी हुई और कोने में रखे कॉलेज बैग की जाने पड़ी। जिप खोलकर एक तयशुदा पर्चा निकाला तो उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट सज गई। उसे मंजिल 2 कदम के फासले पर ही महसूस हो रही थी। एक कोने में एक कपड़ा बिछाकर वो मजबूती से उस कागज़ को थामे हिल हिल कर लिखी हुई इबारतों को पढ़ रही थी। मतलूबा तादाद मुकम्मल किए बगैर उठना ममनू था। वो भी चंद बार ही पढ़ पाई थी कि उसका सर जोर से घूमने लगा था। लक्ष्मी, लक्ष्मी, वही मोहब्बत से पुरपुकार और दिल फरेब लहजा। वो इर्द गिर्द पुकारने वाले को तलाशने लगी। चलो उठो, मेरे साथ आओ, देखो मैं आ गया हूँ। किसी ने उसका हाथ थामकर उसे बहुत हौले और नरमी से अपनी जानिब खींचा। बहुत से गुलाबों की खुशबू ने उसकी सांसों को छुआ। लक्ष्मी, मेरी लक्ष्मी, उन्हीं गुलाबों से जैसे कोई गुलाब पुकार रहा था। बिस्मा ने कहा था कि विर्द की तादाद मुकम्मल होने से पहले इसार नहीं टूटना चाहिए, वरना वो खुद किसी की कैद में आ सकती है। उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई नरमी से उसके बाल सहला रहा हो। वो होश में आई और उस हाथ को झटकने की कोशिश करने लगी, मगर ये कोशिश बेसुध रही। एकदम फिजा में बेशुमार कह के गूंज उठे, गोया बहुत सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हों। वो भी तेजी से लब हिलाने लगी और अपनी तवज्जो अल्फाज पर मरकूज रखने की सही करने लगी। उसके ऐन सामने 2 बड़े बड़े पाँव नमदार हुए। उस वजूद के बाल इतने लंबे थे कि कदमों में झूल रहे थे। बहुत शौक है कैद करने का। उसे कंधे से नीचे बाजू पर दबाव महसूस हुआ और फिर वो दबाव बढ़ता चला गया। उसका हलक खुश्क हो गया, चेहरे पर जर्दी फैल गई। उसने बमुश्किल जुबान लबों पर फेरी और सख्ती से आंखें बंद कर ली। विर्द आखिरी मरहले में था। उसकी आंखें बंद थी, लब साकत, जबकि जुबान पर जुम्बश तारी थी। वो बाहर सूरत उस मरहले को तय करना चाहती थी। फिर यूं हुआ कि उसका दम घुटने लगा, सांस रुकती महसूस होती, दिल की धड़कन थम रही थी। क्या उसका आखिरी वक्त करीब आ चुका है? माता पिता के अरमानों की चिता उसके साथ जल रही थी। उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। रात को क्या हुआ था? लक्ष्मी, क्या डर गई थी? माँ उसके सिरहाने बैठी उसका हाथ सहला रही थी। अच्छा, तो मैं जिंदा हूँ, वो सोच कर रह गई। रात का लम्हा लम्हा निगाहों में घूम गया। खौफ की लहर उसे रीढ़ की हड्डी में दौड़ती महसूस हुई। आंसू का कतरा बालों में गुम हो गया। उसने आंखें बंद कर ली। ड्रिप में शायद नींद की दवा थी, इसीलिए सो गई, माँ किसी को बता रही थी। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, ऐसी लाड और प्यार भरी पुकार पर फिदा होने का जी चाहता। फिर वो आंखें कैसे ना खोलती। तो आपने मुझे जीत लिया है। काश मैं भी आपको जीत जाऊं। एक दिलफरेब खुशबू ने पूरे कमरे का अहाता कर लिया। लक्ष्मी उस महक को आबे हयात समझकर उतार रही थी। उठ गई मेरी बच्ची, तबीयत कैसी है? माँ ने उसका माथा छूकर बुखार चेक करना चाहा। एकदम माहौल बदल गया। वो दिलफरेब महक कहीं उड़न छू हो गई थी और अपने साथ उस खूबसूरत आवाज़ वाले को भी कहीं लेकर गई थी। उसके दिल में यकदम ढेरों उदासियाँ उतरी। तबीयत बेजार सी हुई। उसने एक नज़र माँ पर डाली। तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं तेरे पास ही सो गई थी, माँ ने मुस्कुरा कर वजाहत दी। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है माँ, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं तेरे लिए सूप लेकर आती हूँ। माँ उठकर किचन में चली गई तो वो आंखें बंद करके कुछ देर पहले हुए वाक़े के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते कब उसकी आंख लगी पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद माँ और बिस्मा की मिलीजुली आवाज़ों से उसकी आंख खुली। अब तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है, माँ बिस्मा को बता रही थी। क्या हालत बना रखी है अपनी? बिस्मा ने उसे आंखें खोलते देखकर शिकवे भरे अंदाज में कहा। मैं ठीक हूँ, तुम्हारे आने का शुक्रिया। लक्ष्मी मुस्कुराई। मुझे आए काफ़ी वक्त हो गया, अब मैं चलूँगी लक्ष्मी। जल्द सेहत याब होकर कॉलेज आना शुरू करो। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ मेरी इकलौती दोस्त। अभी ठहर जाओ, कुछ देर बाद चली जाना। लक्ष्मी माँ की मौजूदगी में दोस्त से कोई बात शेयर नहीं कर सकती थी। दर हकीकत अपनी दोस्त को तमाम हालात से आगाह करने के लिए सख्त बेचैन थी। हाँ बेटी, तुम अभी बैठो, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। माँ के वहाँ से उठ जाने के बाद लक्ष्मी ने बिस्मा को सारी कहानी सुना डाली। ख्वाबनाक रात का लम्हा लम्हा उसे अच्छी तरह से याद था। बिस्मा हैरत से आंखें फाड़े सब सुन रही थी, साथ ही डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं फिर आऊँगी, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है। वो खड़ी हुई और अपनी बात कहकर एक लम्हे के लिए भी वहाँ नहीं रुकी।
एक तो पहले कब्रिस्तान की वजह से उसके घर आना बड़ा कठिन काम है, ऊपर से साहिबा पता नहीं किन जादुई किताबों पर अमल कर रही हैं। वो खुद कलामी के अंदाज में कहती वहां से निकलने वाली थी कि पीछे से आती आवाज ने उसके कदम रोके। बेटा, चाय तो पीती जाओ। ये लक्ष्मी की माँ की आवाज़ थी। उसने रुकी हुई सांस बहाल की। मैं फिर आऊँगी आंटी, वो कहकर रुकी नहीं और अपने पीछे लक्ष्मी की माँ को हैरान छोड़कर वहाँ से निकल गई। रात भर सन्नाटो का राज था। उसकी आँख खुली तो तेज़ और दिल फरेब खुशबू उसकी सांसों से टकराई। वो हशाश बशाश सी उठकर बैठी हुई थी। माँ आज भी पास सोई थी, मगर बेहद गहरी नींद में डूबी थी। उसी सानियों से एक छोटा सा साया अपनी जानिब बढ़ता महसूस हुआ। ये आपका तोहफा। एक सुर्ख रंग का किदरे बड़े साइज का गुलाब उसकी गोद में रखकर वो साया रुख मोड़कर वापस जाने लगा। यकीनन एक यही रास्ता है जो फूल भेजने वाले के बारे में बता सकता है। वो गुलाब से उठती रुख को सराब करती महक को नज़रअंदाज की उस साए की जानिब बढ़ी, मगर वो दीवार के आर पार हो गया। वो दीवार पर हाथ मारने लगी। लाशऊरी तौर पर वो खुद भी दीवार के दूसरी पार जाना चाहती थी, और अगले ही पल वो सचमुच दीवार के पार कब्रिस्तान में खड़ी थी। जाने वाले साए ने मुड़कर उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों की चमक ऐसी तेज थी कि वो लम्हे के 1000वें हिस्से में निगाह झुका गई। वो कब आएगा? अल्फाज टूटकर उसके मुंह से अदा हुए थे। सब्र, कुछ चीज़ों के लिए सब्र करना बहुत ज़रूरी होता है लक्ष्मी जी। आपको तो बस इंतज़ार करना है, जबकि उसे एक जंग जीत कर आना है। वक्त तो लगेगा ही। चुप थे भरे अंदाज में सही, मगर उसे समझा दिया गया था। सुबह को उसकी आंख खुली तो वह अपने बिस्तर पर मौजूद थी। उसे रात वाला वाक़या एक ख्वाब मालूम हुआ, मगर गुलाब अपनी जगह पर मौजूद था, जिससे साफ जाहिर था कि रात वाला वाक़या न कोई ख्वाब था न ख्याल। बहुत देर तक सामने दीवार को तकती ये सोचती रही कि वो उसके अंदर से कैसे गुजर सकती है। फिर कुछ देर बाद वो सर झटक कर उठ खड़ी हुई। वो ज़्यादा देर हैरान नहीं रह पाई थी, क्योंकि ज़िंदगी वैसे ही एक हैरान कुन मुअम्मा बन चुकी थी, जहाँ रोज़ ही गैर मामूली वाक़यात पेश आ रहे थे। माँ काम के लिए निकल चुकी होती थी। वो अपने लिए नाश्ता बनाने लगी। दोपहर के 3 बजे थे। वो बेड पर बैठी सोचों में गुम थी कि यकदम रोशनदान से मक्खी नुमा जानवर अंदर दाखिल हुए। उनके बड़े बड़े पर दाएं बाएं लटके हुए थे। वो कमरे में दाखिल होने के बाद उसके सर के ऊपर मंडलाने लगे। कई चक्कर काटने के बाद वो उसके करीब आए और बारी बारी रूप बदलने लगे। उनका मकसद शायद उसे हवास बाख्ता करना था, मगर इतना कुछ हो जाने के बाद भी उस वक्त वो पुरतजस्सुस होने के अलावा कुछ नहीं थी। हम गुलाब लेने आए हैं। हमारे कबीले के एक जिनजाद ने गलती से तुम्हें वो गुलाब भेज दिया है, जिस पर हरगिज़ तुम्हारा कोई हक नहीं है। करख्त आवाज़ में उससे मुतालबा किया गया था। मैं वो गुलाब वापस नहीं करूँगी। मैं उस गुलाब के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, मगर वो गुलाब मेरी ज़िंदगी है। मेरे पास उस गुलाब की मौजूदगी इस बात की निशानदेही करती है कि मुझे पुकारने वाला जल्द मुझसे आ मिलेगा। उसका इतना कहना था कि कमरा ख़वातीन और मर्दों के मिले जुले कहकों से गूंज उठा। ए कमअक्ल लड़की, क्या तूने कभी दिन और रात का मिलन देखा है? नहीं ना। बेशक दोनों सदियों से एक दूसरे के पीछे चले आ रहे हैं, मगर दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, और दो मुखालिफ चीज़ें एक नहीं हुआ करती। ये एक गहरा फ़लसफ़ा उसके अंदर उतरा था कि नहीं, मगर उसका जहन ज़रूर उलझन का शिकार हुआ था। हम चाहें तो एक लम्हे से भी कम वक्त में उस गुलाब को तुम्हारे पास लेकर जाएं, मगर हम मिल्कियत पर डाका डालने वालों में से नहीं हैं। ये काम तुम इंसानों के ही हो सकते हैं। उनमें से एक आवाज़ ने जिताने वाले अंदाज में कहा था। वो इंसान नहीं थे, मगर उनके अंदर एक हद तक इंसानियत मौजूद थी। अपने फैसले से जल्द आगाह करना हमें, बदले में जो चाहोगी तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, अमीरों के भी सही मज़े हैं, कभी कोई पार्टी कभी कोई दावत। माँ नॉन स्टॉप बोलती कमरे में दाखिल हुई। उस पर निगाह पड़ी तो टोके बिना न रह सकी। अभी तक बिस्तर में पड़ी है, और तेरे कमरे में ये किस किस्म के जानवर पैदा हो गए? तबीयत तो अब बेहतर है तेरी? झाड़ पूंछ क्यों नहीं करती? आज ही मैं तेरे कमरे में धोनी देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे सांस लेने में ज़रा दुश्वारी है माँ। धोनी दोगी तो मेरी सांस ही बंद हो जाएगी। लक्ष्मी ने माँ की जानिब देखा। वाकई उसकी सांस घुट घुट कर आ रही थी। लक्ष्मी का बाप बोझल कदमों से घर में दाखिल हुआ था। उसकी चाल में सदियों की थकावट नुमाया थी। लक्ष्मी की माँ, मामला बड़ा संगीन है।
اس نے پتنی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ لمحے بھر میں اٹھ بیٹھی، گویا پہلے سے منتظر تھے۔ پنڈت جی نے حساب کر کے بتایا ہے، جن ذات کا معاملہ ہے، دونوں ملن کے لیے بےتاب ہیں، مگر دوسری جانب شدید رکاوٹ ہے۔ اپنی لکشمی ساری رکاوٹیں دور کر چکی ہے، پتہ نہیں کب اور کیسے۔ دھرندر کا لہجہ دکھ سے چور تھا۔ پنڈت جی نے یہ پانی دیا ہے، لکشمی کو پلانا ہے، اور کہا ہے کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسلم جن ذات کبھی ہندو زادی پر عاشق ہونے کو تسلیم نہیں کرتے، حتیٰ کہ لڑکی خود مسلمان ہو جائے۔ ہاں، اگر وہ کسی خود غرضی کے بغیر مذہب سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرے تو الگ بات ہے۔ لکشمی کی ماں منجمد ہو چکی تھی، اکلوتی بیٹی کو کھو دینے کا احساس جان لیوا تھا۔ لکشمی نے باپ کی زبان سے ادا ہوتا ایک ایک لفظ اپنے کانوں سے سنا تھا، تو اس کی زندگی کے بدلاؤ کی وجہ یہ تھی۔ وہ سوچ کر رہ گئی، زندگی کس موڑ پر لے کر آئے تھے۔ دل اس کے لیے بے چین تھا، در حقیقت اس کا اس سے کوئی سمبند ہی نہیں تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے گرا تھا۔ عبدل، عبدل، بین کرتی روتی کرلاتی آواز تھی۔ اسے زنجیروں میں جکڑا جا رہا تھا۔ رونے والی اس کی ماں تھی۔ تم ایک ہندو لڑکی کے لیے انسانی دنیا میں نہیں جا سکتے، تم ایک مسلمان جن زاد ہو، تم مسلمان ہونے کا معیار انسانوں کی طرح نہیں بنا سکتے۔ اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق زندگی ایک مسلمان کی نہیں ہو سکتی۔ انسان ہمیشہ انہی غلطیوں کی وجہ سے خسارے میں رہے، ہم اس خسارے سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے آئے، اب تمہیں بچانا بھی ہمارا فرض ہے، اولاد ہو تم ہماری۔ بے حد کرخت اور سخت آواز اس کے دادا کی تھی۔ اسے زنجیروں میں جکڑا جا رہا تھا، قید اس کا مقدر بن رہی تھی۔ اس کی ماں اور 2 بہنیں اشکبار تھی۔ جب تک وہ گلاب اس لڑکی کی ملکیت رہے گا، تم اسی طرح سے قید رہو گے۔ جس روز وہ ہندو لڑکی اس گلاب کی ملکیت سے خود کو آزاد کر دے گی، وہی دن تمہاری آزادی کا دن ہوگا۔ زنجیروں کو مقفل کرتے سردار جن نے حتمی انداز میں کہا تھا۔ لکشمی کو اپنے بازو پر بے حد دباؤ محسوس ہوا۔ رات طویل تھی، بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ یکدم کمرے میں روشنی چمکنے لگی جو اتنی تیز رفتاری سے جل اور بجھ رہی تھی کہ اس کا سر چکرانے لگا۔ ہم تمہارے لیے کچھ گلاب کی پتیاں لے کر آئی ہیں، کیا تم ہم سے اپنے گلاب کا سودا کرو گی؟ 2 بے حد حسین لڑکیاں نمودار ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں چمکدار پلیٹیں تھیں جس کے اندر دیے جل رہے تھے، جس کی روشنی وقفے وقفے کی سے ماند پڑ رہی تھی۔ اسی حساب سے کمرے میں بجلی جیسی چمک محسوس ہو رہی تھی۔ میں سمجھی نہیں، لکشمی کو سینے میں گھٹن سی محسوس ہوئی۔ میں سمجھاتی ہوں۔ ان میں سے ایک لڑکی ہنستے ہوئے بولی تو اس کے دانتوں کی چمک سے لکشمی کی آنکھیں چندی آ گئی۔ تمہارے گلاب کی مہک ماند پڑنے والی ہے اور آہستہ آہستہ وہ بالکل ختم ہو جائے گی، پھر وہ اپنا اثر بھی کھو دے گا۔ لڑکی کے انکشاف کرنے پر وہ خاموش ہوئی۔ دوسری لڑکی نے اپنے پنکھڑی جیسے لب کھولے۔ خوشبو کے ساتھ اس کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی، تمہارا اس سے تعلق مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، تم اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ گی اور وہ اپنی دنیا میں۔ دونوں لڑکیاں طنز بھرے انداز میں ہنسنے لگی۔ سوچو تمہارے ہاتھ کیا آئے گا؟ اگر تم وہ گلاب ہمیں دے کر یہ سرخ پتی اپنے پاس رکھ لو گی تو جب بھی تم ان کی مہک کو اپنے اندر اتارو گی، تمہارے دل میں موجود کوئی بھی خواہش فوراً پوری ہو جائے گی۔ مجھے منظور نہیں، لکشمی نے سخت اور حتمی انداز میں کہا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ دونوں لڑکیوں کے ہاتھوں میں تھمی پلیٹیں آگ سے بھر گئی اور پورا کمرہ دھوئیں کی لپیٹ میں آ گیا۔ لکشمی کی آنکھوں میں دھواں گھس گیا تھا، حلق میں بھی دھواں تھا۔ وہ کھانسنے لگی، اس کی گھٹن بڑھ گئی تھی، سب کچھ دھوئیں میں غائب ہو گیا تھا۔ لکشمی، لکشمی، پانی پی بیٹا، یہ اس کی ماں کی آواز تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو ماں کو موجود پایا۔ لمحے بھر میں منظر بدل گیا تھا، دھوئیں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پانی، اس کا جی چاہا گھٹا گھٹ پانی چڑھا لے، مگر کچھ تو تھا جو وہ چاہ کر بھی گلاس تھام نہیں سکی۔ اسے پتا جی کی بات یاد آئی، وہ اس کے لیے خاص پانی لے کر آئے تھے۔ ہو نہ ہو اس پانی کا تعلق بھی گلاب کی مہک ختم کرنے سے ہے، جو میں کسی طور نہیں چاہتی جب تک اس خوبصورت آواز والے کی حقیقت نہ جان لوں۔ مجھے پانی نہیں پینا ماں، اس نے انکار کر کے آنکھیں موند لی۔ ماں مایوسی سے واپس پلٹ گئی تھی۔ لکشمی جی، لکشمی جی، اس کے بالوں میں اسے ایسے لگا جیسے کوئی انگلیاں چلا رہا ہو۔
बड़ा पुरकैफ सा एहसास था। वो बंद आँखों के साथ इस एहसास और कैफियत तले रहना चाहते थे। ये कैसे खुमारी थी, वो अपनी ज़ात तक भूल जाया करती। लक्ष्मी जी, मैं जानता हूँ मेरी वजह से आप बड़ी तकलीफ़ में हैं। मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे अपनी किसी तकलीफ़ की परवाह नहीं है, क्योंकि मैं तो शायद गुलाब के मुरझाने तक जिंदा हूँ। मुझे लगता है फिर मुझे फना हो जाना है। आवाज़ में दुख, तकलीफ़, तासुफ, मलाल, कुछ खो देने का एहसास, क्या कुछ नहीं था। मगर वो तो उस आवाज़ में खोई थी जिसकी दिलकशी जानलेवा थी, जिसका लहजा कातिलाना था। वो होश न खोती तो क्या करते। अगले रोज़ उसका मूड बड़ा खुशगवार था। उसने वक्फे वक्फे से कई बार गुलाब की खुशबू सीने में उतारी और दिल से मुस्कुराई। सुबह 6 बजे का वक्त था। वो चहल कदमी के लिए बाहर निकल गई। सूरज ने अपनी किरणें ज़मीन पर फैलाकर लोगों की ज़िंदगियों में गर्माहट पैदा करने की कोशिश शुरू कर दी। उसे अपने कदमों के बराबर से कदमों की चाप सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो कोई उसके बहुत करीब चल रहा था। उसने एक नागवारी भरी निगाह डालकर अपने कदम मुखालिफ सिमत में बढ़ाए। वह अजनबी उसी सिमत चल पड़ा। मुझे दिल नवाज कहते हैं, और आपको? वो उसके नागवार अंदाज को नज़रअंदाज करके खुशदिली से बोला। अपनी हद में रहे मिस्टर। यूं सरेराह बीच में एक अजनबी लड़की को रोक कर रस्म राह बढ़ाना कहाँ की तहजीब है? उसके करख्तगी से कहने पर दिल नवाज अपना सा मुँह लेकर उससे मुआजरत करता वहाँ से चला गया। उसका मूड खराब हो चुका था। वो पाँव पटकती वहाँ से घर के जानिब बढ़ गई। लक्ष्मी गुलाब हाथ में थामे बैठी थी। उसकी खुशबू कुछ मांद पड़ गई थी। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार वाज़ेह थे। सारी चाल खराब कर दूंगी, जीती बाजी हरा दूंगी। अपनी जीत का जश्न मनाने वाले उठकर आंसू रोएंगे। वो सोच कर मुस्कुरा रही थी। मेरा हर रास्ता तुम तक जाता है मेरे महबूब। मैं तुम्हारी दिलकश आवाज़ और अंदाज को कभी नहीं खोऊंगी। वो मुस्कुराती ही उठी और खुशी के मारे कमरे में गोल गोल घूमने लगी। उसे मंजिल करीब दिखाई दे रही थी। उसे ताज़ा महकता गुलाब अपने हाथों में महसूस हो रहा था। उसने डोर बेल पर हाथ रखा तो हटाना भूल गई। बिस्मा ने दरवाज़ा खोला तो उसे हंसता मुस्कुराता खड़ा देखकर जहाँ हैरत हुई वहीं खुशी का भी एहसास हुआ। अंदर नहीं बुलाओगी? लक्ष्मी बोली तो वो मुस्कुराकर रास्ता छोड़ गई। मैं एक ज़रूरी काम से तुम्हारे पास आई हूँ। पहेलियाँ ना बुझवाओ, जल्दी से शुरू करो। बिस्मा सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए बोली। मुझे वही जादुई किताब चाहिए जो तुमने पहले दी थी। मैं वही मंत्र दोबारा करना चाहती हूँ ताकि जो असर टूट रहा है वो फिर से मजबूत हो जाए, बल्कि मजबूत से मजबूत तर हो जाए। बिस्मा का तजस्सुस भरा अंदाज एक पल को नागवारियत में बदला, मगर जल्द ही उसने खुद को संभाला। आर यू सीरियस? वो पूछे बिना नहीं रह सकी। यस, लक्ष्मी हंसते हुए बोली। इत्तफाकी तौर पर बिस्मा उस वक्त घर में अकेली थी, सो वो अपने घर में बालाई हिस्से पर बने स्टोर रूम में उसे ले आई जो धूल मिट्टी से अटा पड़ा था। हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता, इसलिए यहाँ की सफाई का भी ख्याल नहीं रखा जाता, बिस्मा शर्मिंदगी भरे अंदाज में बोली। कोई बात नहीं। दोनों इर्द गिर्द फटी पुरानी किताबों और पुराने काठ कबाड़ में जादुई किताबें ढूंढती बातें भी कर रही थी, मगर उन दोनों की तलाश रही। 2 घंटे बाद भी वहाँ से मायूस से निकली थी। बिस्मा का कहना था कि किताब इसी स्टोर में मौजूद थी। फिर किताब वहाँ से कहाँ चली गई थी? उस वक्त यही सवाल दोनों के दिमाग में गर्दिश कर रहा था। मेरी मानो तो तुम इन मामलात से बाहर निकल आओ, अपनी ज़िंदगी नए सिरे से जियो और कामयाबियों को तलाश करो। मैं यहाँ तुमसे कोई एडवाइस लेने नहीं आई। वो बोझिल लहजे में कहती उठ खड़ी हुई और लर्जीदा कदमों से बिस्मा के घर से बाहर निकल गई। बिस्मा दुख भरे अंदाज में उसे जाता देखती रही। वो बखूबी जानती थी कि इस वक्त उसे रोकना या कुछ समझाना बिल्कुल बेकार है। आंसू से लक्ष्मी का चेहरा भीगा हुआ था। उसके मुंह से घुटी घुटी चीखें निकल रही थी। वो गुलाब हाथ में थामे मुसलसल रो रही थी। मैं तुम्हें नहीं संभाल सकती, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। इस वक्त मैं खुद को दुनिया की कमज़ोर और बेकार तरीन लड़की तस्वुर कर रही हूँ। गुलाब से नमी टपक कर उसके हाथों पर फिसलती जा रही थी। वो यकटक उसे देखे गई, उसकी आंखें बंद होती चली गई। लक्ष्मी जी, मैं जानता हूँ ये वक्त हमारे लिए बहुत कठिन है, ख़ास तौर पर मेरे लिए, मगर यह भी हकीकत है कि इस गुलाब की मौजूदगी हमें एक दिन ज़रूर मिला देगी। वक्ती तौर पर शायद हम जुदा हो जाएं, मगर एक रोज़ हमेशा के लिए मिल जाएंगे। उदासी में डूबा लहजा शिकस्त खुर्दगी से लबरेज था। कमरे में अंधेरा फैला था। लक्ष्मी को एक ह्योला सा अपने करीब नजर आ रहा था। आज वह हर लफ्ज़ का जवाब दे रही थी।
हर बात का महफूम समझ रही थी। एक दूसरे से वफाओं के अहद लिए जा रहे थे। वादों के इज़हार में दो दिल लिपट रहे थे। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। ख्वाहिश में लिपटा सवाल अब्दुल को खामोशियों के जहां में ले गया। मैं अपनी ताकत खो चुका हूँ लक्ष्मी जी, मगर मेरा वादा याद रखना, एक दिन कभी ना जाने के लिए लौटूंगा या आपको साथ ले जाऊंगा। उसका लहजा यकीन से पुर था। लक्ष्मी उठ जाओ, मैंने नाश्ता बना दिया है, चाय थर्मोस में रखी है। दोपहर को अपने लिए कुछ बना लेना, मुझे अपनी दवाई लेने जाना है, घर चक्कर नहीं लगाऊंगी। माँ उसे हिदायत देती घर से निकल गई थी। ये उसके लिए दिन अजियत से भरपूर था। वो उठकर अपनी आदत के मुताबिक अलमारी तक गई और उसे खोलकर खुफिया दराज से गुलाब निकालकर नथनों से लगाया। उसकी मुरझाई बंद कलियों पर मुर्दनी छाए थे। वो अपनी ताजगी खो चुका था, खुशबू नापैद हो चुकी थी। दरहकीकत उन दोनों का रिश्ता अपने अंजाम को लग चुका था। वह फूट फूट कर रोने लगी। एकदम तन्हाई के एहसास ने उसे घेरा तंग कर लिया। उसका दम घुट रहा था। उस वक्त कमरे में बेशुमार मक्खियों की बिनबिनाहट जैसी आवाज़ें आना शुरू हो गई। उसके बाद शहनाइयाँ गूंजने लगी। कमरे में उसके सर पर जैसे ढोल पीट कर कई लोग कामयाबियों का जश्न मना रहे थे। उसने दोनों हाथों से अपने कान ढांप लिए। शहनाइयों की आवाज़ थमी तो मक्खी के साइज की बेशुमार छोटे छोटे जानवर पूरे कमरे में उड़ते फिरने लगे। कुछ देर उड़ने के बाद वो एक साथ बड़ी तेज़ी से रोशनदान से बैरूनी जानिब उड़ गए। घर में दम घुटने लगा तो वो चहलकदमी के लिए घर से बाहर निकल गई। चलते चलते वो काफ़ी दूर आई थी। जगह बदलने से दिल की बेसुकूनी कब कम हुआ करती है, सो दिली गम था कि कम न हुआ। लाशौरी तौर पर वो सुकून की मुतलाशी थी। एक जगह उसके कदम ठहर गए। बहुत से लोग मिलकर एक जैसी हरकतों सकनात कर रहे थे। तो क्या इनकी ज़िंदगी में कोई गम नहीं है? वो खड़ी होकर हैरान से उन्हें देख रही थी। क्या इनमें से किसी इंसान ने मोहब्बत का रोग नहीं पाला? एक के बाद एक ख्याल उसके जहन में चला आया। वाह, कोई दाएं बाएं नहीं देखता, कोई किसी से एक लफ्ज़ नहीं कहता, सबका अमल यकसां। इन सब में इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है? मुझे भी इसी तरह करना चाहिए। शायद इन सब की तरह मैं भी फिक्रात से आज़ाद हो सकूं। इस सोच की आमद की देर थी कि वो ज़मीन पर वही अमल दोहराने लगी। कई लोग नमाज अदा करके निकल रहे थे। एक नज़र उस पागल सी लड़की पर डालने पर जहनी तवाज़ुन ख़राब होने का गुमान होता। दिल नवाज ने जब ये मंजर देखा तो शशदर रह गया। यहाँ क्यों नमाज पढ़ रही हो? वो करीब आकर पूछ रहा था। अच्छा, नमाज? वो शर्मिंदा सी हुई। नमाज के लिए मुसलमान होना शर्त है क्या? वो सवाल पूछ रही थी। उसके लहजे में कर्ब नुमायां था जो दिल नवाज से छुपा नहीं रह सका। नहीं नहीं, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। चलो तुम्हें अपनी बुआ के पास ले चलता हूँ, वो तुम्हें इबादत के एतवार सिखा देंगी। वाकई वो बच्चों की सी खुशी उसके चेहरे पर नुमायां थी। क्या मैं फिर उसी सुकून से रह पाऊंगी जितना सुकून मुझे इस वक्त तुम्हारे और कुछ देर पहले यहाँ मौजूद लोगों के चेहरों पर नजर आया था? वो पूरा रास्ता बोलती रही थी। दिलनवाज ने अपनी बुआ को बाहर बुलाकर न जाने क्या कहा था। उन्होंने उसके बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं पूछा। वो उसके साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रही थी। छोटे छोटे सवाल, पसंद नापसंद, उसकी दिलचस्पियाँ मालूम कर रही थी। कुछ ही देर में ऐसे लगा कि उन्हें वो सदियों से जानती है। मैं शादी के 2 साल बाद ही बेवा हो गई थी। फिर ससुराल में अकेली रही और बदकिस्मती से मेरी भाभी का इंतकाल हो गया तो दिलनवाज की देखभाल करने के लिए मैं मुस्तकिल तौर पर यहीं आ गई। मेरे भाई यानी दिलनवाज के वालिद कुवैत में क़याम पज़ीर हैं। वहाँ अपनी दूसरी बीवी और बच्चों के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दिलनवाज की वहाँ रहने के लिए मर्जी नहीं है। वैसे वो हालात को बड़ी अच्छी तरह से कबूल कर चुका है। उन्होंने अपने बारे में क़दर से तफसील से बताया। इस दुनिया में कोई वजूद गम से खाली नहीं है। वो सोच कर रह गई। मेरे ख्याल से तुम्हें घर जाना चाहिए अब। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जी ज़रूर, वो मुस्कुरा कर खड़ी हुई। दिलनवाज तुम्हें घर तक छोड़ेगा। बुआ उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। धन्यवाद, मैं चली जाऊंगी, वो मुस्कुरा दी। फिर आना ज़रूर। वो वहाँ से लौटते वक्त खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। झल्ली, आजकल लक्ष्मी बड़ी खुश रहने लगी है। खैर तो है। दरअंदर ने गरम रोटी का बड़ा सा लुकमा तोड़कर पत्नी को बड़े खुशगवार अंदाज में मुखातिब करते हुए कहा। हाँ, बता रही थी कि कोई नई दोस्त बनी है। शुक्र है उस जिन के चक्कर से जान छुटी। कल ही मैंने हिसाब निकलवाया था। पंडित जी कह रहे थे कि खुद ही नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ जाएगी।
किसी मामले में जोर ज़बरदस्ती ना की जाए। उनके भेजे पानी ने बड़ा काम कर दिखाया। पूरे 20 दिन उसी की चाय बनाकर पिलाई है इसको। हाँ जानता हूँ, बड़ी मेहनत की है तूने। कह रही थी कॉलेज भी जाऊंगी अब, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लक्ष्मी बिस्तर में लेटी बज़ाहिर सोती बनती सारी बातें सुन रहे थे। वो दोनों नाश्ते के बाद अपने अपने काम पर चले गए। लक्ष्मी उठी और दरवाज़ा लॉक करने के बाद नाश्ते और मामूल के कामों से फारिग होकर बैग में एक आम चीज़ रखकर घर से निकल खड़ी हुई। वो दिलनवाज से मिलना चाहती थी। बुआ घर पर नहीं है। दरवाज़ा उसी ने खोला था। मुझे तुमसे मिलना है, क्या हम कुछ देर के लिए दरिया के किनारे चल सकते हैं? उसके अल्फाज दिलनवाज को हैरत का शिकार कर रहे थे। ज़रूर, मैं बाइक निकाल लूँ, उसने मोहलत मांगी। बिल्कुल। कभी कभार अपनी ज़िंदगी के हर पल का एतराफ़ करने का दिल चाहता है। हम अपनी हार को छुटला देते हैं, इस तरह कि वो वर्क ही हमारी ज़िंदगी की किताब में नहीं रहता। ये नहीं जानते कि ज़िंदगी की किताब पर तहरीर शुदा कोई बाब मिटता नहीं है। जिसे हम मिटाने की कोशिश करते हैं वह हमारे दिल में मुंतकिल हो जाता है और फिर हम उस बाब को रोज़ नए सिरे से पढ़ते हैं और रोज़ ही भूलने की कोशिश करते हुए अपने दिल को समझाने में सारी उम्र गुजार देते हैं। और दर हकीकत वो कभी भूलते नहीं हैं। वो दरिया के किनारे बैठी बैग से एक सुर्ख मुरझाया गुलाब निकाल कर उसकी एक एक पत्ती दरिया में डालते हुए दिलनवाज को न जाने कौन सा फ़लसफ़ा सुना रही थी। तुम बहुत गहरी बातें करती हो, वो कहे बिना न रह सका। ये सब मुझे तुम्हारी बुआ ने बताया है। मुझे आज तक उनकी बातें याद नहीं हुई। तुम वाकई ज़हीन हो, बुआ ठीक कहती हैं। और मोहब्बत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो बेख्तियार कह गई। वो खामोश बस यकटक उसे देखता रहा। इस बात का जवाब फिर कभी सही। अच्छा, तुम्हें मोहब्बत की एक सच्ची दास्तान सुनाती हूँ। आज वो सब कह देने के मूड में थी। मैं इसलिए इस्लाम कबूल नहीं कर रही कि मेरे दिल में उससे मिलने की कोई रमक बाकी है, बल्कि मैं पूरे दिल से दायरा इस्लाम में दाखिल होना चाहती हूँ। आज वो उसे हैरान करने पर तुली थी। मैं जानता हूँ, तभी तुम वो गुलाब दरिया में बहा चुकी हो। बिल्कुल, वो मुस्कुरा दी। मैं ये खुशखबरी बुआ जी को सुनाऊंगा तो वो बहुत खुश होंगी। दो गैर इंसानी मादा वजूद दुआओं के तहाइफ लेकर ज़मीन पर उतरे थे। तुम एक अच्छी लड़की हो। भाई की मोहब्बत में हमने तुम्हें तंग ज़रूर किया, मगर यकीन मानो हमें तुमसे कोई चकलिश नहीं थी। एक ने कहा तो दूसरी जिनज़ादी हंस पड़ी। वो तुम्हारी बात नहीं सुन सकती। वो बहुत बेहतरीन काम कर रही है। इस्लामिक सेंटर में बुआ की मौजूदगी में उसने लक्ष्मी से मोमना तक का सफ़र तय किया। क्या लाजवाब सफ़र था। हर आँख अश्कबार थी। राहदारी में खड़ी वो दोनों बहनें हर आँख से ओझल उसके लिए दुआ गो थी। दिलनवाज तुम्हें घर तक छोड़ देगा, बुआ ने बाहर कदम रखते खुलूस भरे अंदाज में कहा तो वो इनकार नहीं कर सकी। एक नई जिंदगी की शुरुआत पर ढेरों मुबारक। उसका नाजुक और मुलायम हाथ उसके कंधे पर होता तो वो खुद को हवाओं में तस्वुर किया करता। अब वो खुद को किसी सुल्तानत का राजा समझता, बाइक को हवाओं के हवाले कर चुका था। आज वो बड़ी जल्दी बेदार हुई थी, सो माँ बाप के साथ नाश्ते पर मौजूद थी। माँ, कोई लफ्ज़ चुभने लगे तो क्या करना चाहिए? वो तमहीद बांधने लगी। ये क्या बात हुई भला? कोई चीज़ हो या कोई शब्द आज़ार बने तो जीवन से निकाल बाहर करो। माँ ने रोटी सेंकते हुए बेटी को अपनी तरफ से ज़िंदगी का एक सबक सिखाया। माता पिताजी, मैं भी अपने जीवन से लक्ष्मी नाम को निकाल कर मोमना बन चुकी हूँ। उन दोनों के सर पर बम ब्लास्ट हुआ था। ये कोई मजाक का वक्त है? माँ अब भी बेयकीन थी। मजाक नहीं है माँ, 100% हकीकत है। निकल हमारी जिंदगियों से। हमारी जिंदगियों में तेरी कोई जगह नहीं है। उसके पिताजी ने उसे बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकाल दिया। वह अपने घर के दरवाजे पर बैठी बाजू में मुंह दिए रोते रही। कुछ देर बाद वो दोनों काम पर जाने के लिए घर से निकले और उस पर गलत निगाह डाले बगैर सामने से गुजर गए। जाते हुए दरवाज़ा मकफल करना नहीं भूले थे। वो शिकस्त खोदा सी उठी और अपने कपड़े दुरुस्त करने के बाद गले में झूलते दुपट्टे को खोलकर सर पर ओढ़ते एक सिमत चल दी। कोई तैयारी अधूरी न रहे। इंसानों का तो मालूम है कितनी जज्बाती मखलूक है। हर शे को दुल्हन की तरह सजा दो। आज हमारी धरती पर हमारे पोते की महबूबा कदम रखने वाली है, जिसकी खातिर उसने बड़ा दर्द सहा है। आज उसके मिलन का दिन है, एक यादगार मिलन जिसमें दो अलग दुनिया के मुसाफिर एक हो जाएंगे। हाँ, बस कर दें, मुझे कैद में डालने वाले भी आप थे। अब्दुल हंस पड़ा। बरखुरदार,
कैद करना उस वक्त की अहम ज़रूरत थी। सोचो, वरना हालात इस मोड़ पर ना होते। मानना पड़ेगा दादा, आप एक समझदार जिन हैं। और हम, अब्दुल की दोनों बहनें सामने हुई। हम जिन्नों के कबीले की तुम बेहतरीन रिपोर्टर हो, जो इंसानी दुनिया की हर खबर बड़े बेहतर अंदाज में यहाँ पहुँचाना जानती हो। वो दोनों हंस पड़ी। एक छोटा सा कबीला दिल में मोमिना के लिए बेशुमार मोहब्बत के फूल लिए भंवरों की सूरत में उड़ान भर गए। बुआ ने उसका कमरा सेट करवा दिया था। वो थकान ज़दा सी बिस्तर पर लेटी तो जल्द ही गहरी नींद में चली गई। मोमना जी, उसे कोई बड़े दुलार से नींद से बेदार कर रहा था। उसकी समात में शहद घुल रहा था। ये लहजा, ये अंदाज जिंदगी की उम्मीद था। उसने आंखें खोली और झपकना भूल गई। मोमना जी, मैं वादा निभाने के लिए वापस आ गया हूँ। क्या वाकई तुम अब्दुल हो? मोमना ने ऐसा मर्दाना वजाहत का शाहकार पहली बार देखा था। वो हंस पड़ा। हमारे साथ चलो मोमना, हम सब तुम्हें लेने के लिए आए हैं। वो हैरत से सबके चेहरे देख रही थी। मगर क्यों? मोमना हैरान आंखों से सब देख रही थी। क्या तुम अपना वादा भूल चुकी हो? अब्दुल की आंखों में कांच सा चुभा। हाँ, मैं भूल गई हूँ, उसने सख्त लहजे में कहकर खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। क्या तुम भूल गई हो कि तुमने कई रोज मेरी चाहत में अश्क बहाए? अब्दुल की आंखों में उम्मीद बाकी थी। जिस रोज मैंने तुम्हारा दिया गुलाब दरिया के सुपुर्द किया था, उसी रोज मैंने तुमसे ताल्लुक ख़त्म कर लिया था। वो साफ गोही से कहकर गोया बरी ज़िम्मा हुई थी। आप लोगों की आमद का शुक्रिया, मगर अब आप सब जा सकते हैं। मैं उम्मीद रखूंगी कि आइंदा हमारा सामना नहीं होगा। उसने अपनी बात मुकम्मल करके सख्ती से आंखें बंद की। फिजा में बहुत सारे भंवरों की बिनबिनाहट सी गूंजने लगी। फिर कुछ देर में वो सब गायब हो गए। बुआ के हाथ दिलनवाज का निकाह का पैगाम भिजवा दिया था। खुशी ने मोमना के दिल की दहलीज को छुआ। बुआ के साथ मिलकर निकाह की तैयारियों में मसरूफ हो गई। 5 साल बाद। जल्द आइएगा, बुआ की कब्र पर फूल चढ़ाने जाना है। रात ख्वाब में मैंने देखा था उन्हें, बहुत याद आ रही है। ठीक है मेरी जान, आ जाऊंगा। दिलनवाज ने उसे गले लगाया और ऑफिस के लिए निकल गया था। मामा, पापा का ऑफ नहीं है आज? नन्ही रवाहा ने उससे सवाल किया था। क्योंकि उन्हें फीवर नहीं है? ओह, रवाहा ने अपनी आंखें एकदम से मटकाई थी। अच्छा, पहले जिन वाली स्टोरी सुनाए, वरना मैं अब्दुल को भी जगा दूंगी और फिर हम दोनों मिलकर आपको तंग करेंगे। 4 साला रवाहा की नन्ही सी धमकी काम कर गए थे। भाई को मत जगाना, सुना रही हूं मैं तुम्हें स्टोरी। एक हिंदू लड़की ने अपनी कम अक्ली और मासूमियत के हाथों एक जिन जात को काबू कर लिया था और फिर वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे। फिर यूं हुआ कि हर शे उस लड़की की दस्तरस से दूर हो गई थी, मगर वो बहुत खुश थी फिर भी, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी का असल मकसद जो हासिल हो गया था। उसने फिर पलटकर कभी भी अपनी मोहब्बत का नहीं सोचा। मगर जब वो सब कुछ भूलने लगी थी तो वो जिनजात एक बार फिर से उसकी जिंदगी के रास्ते में आकर खड़ा हो गया था। मुश्किल तो बहुत ज्यादा था, उसे छोड़कर कदम बढ़ाना आसान नहीं था, मगर उस बहादुर लड़की ने उस काम को आसान समझा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसी चीज़ का इंतखाब करना चाहिए जो कि बेहतर हो, वो नहीं जो हमें बेहतर लगे। नन्ही रवाहा ने मासूमियत और नासमझी भरे अंदाज में अपनी माँ को एक नज़र देखा था, जिसकी आंखों के गोशे नम और दोनों लब मुस्कुरा रहे थे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।